5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट TFX की पहली कामयाब परवाज। TFX फाइटर जेट ने पहली परवाज से अहम संगे मील हासिल कर लिया। तैयारे ने अंकारा के शुमाल में एक एयरबेस से उड़ान। पाक तुर्किया 5th जनरेशन फाइटर जेट की आइंदा माह पहली परवाज की तैयारियां मुकम्मल कर गई हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तुर्किया के साथ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट मंसूबे पर काम कर रहा है। पाकिस्तान के 200 माहिरीन मंसूबे पर तुर्किया के साथ मसरूफ़ अमल हैं। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट जो है TFX, इसकी पाकिस्तान और तुर्की का जॉइंट वेंचर है। पाकिस्तान तुर्की का बाकायदा शराकतदार बन चुका है इस प्रोजेक्ट में, ये ज़राए का कहना है। और इस हवाले से TFX की जो पहली परवाज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि इस प्रोजेक्ट ने अचीव किया है। और हम कह सकते हैं कि TFX प्रोजेक्ट जो है एक तो अपनी पहले से तयशुदा टाइमलाइन के ऐन मुताबिक आगे बढ़ रहा है और इस दौरान ये जो पहली परवाज हुई है तैयारी की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। जय हिंद बंधुरा, आमी दीप और आपनारा देखছেন আপডেট इंडिया। বাংলা একটা প্রবাদ বাক্য আছে, যার বিয়ে তার কোনো ব্যাপার নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই। ঠিক এমনটাই হচ্ছে আজকের দিনে তুর্কিকে নিয়ে। আপনারা জানেন যে গত পরশুদিন তুর্কির 5th জেনারেশন ফাইটার জেট, যেটার নাম হচ্ছে কান, সেটা ফার্স্ট ফ্লাইটকে কমপ্লিট করেছে। আর এই বিষয়টাকে নিয়ে এখন বিশেষ করে পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তানের মিডিয়াতে যেন মনে হচ্ছে তারা একটা বড় কিছু করে ফেলেছে। তাদের দাবি এটাই যে ইসলামিক বিশ্বের এটা বড় জয়, ইসলামিকদের জন্য এটা বড় আনন্দের খবর, কেননা আমরা কিছু করেছি। জানি না এটা কোন অ্যাঙ্গেল থেকে হলো, যেখানে এক ইসলাম আর এক ইসলামের এখনো ভাই হতে পারেনি, সেখানে তারা দাবি করে তুর্কির আনন্দ, তো নাকি সেটাও নাকি তাদের আনন্দ। যেটাই হোক, এখন তাদের বক্তব্য যে তুর্কির ফাইটার জেটের আনন্দে তারাও আনন্দিত। বিশেষ করে এখন পাকিস্তানিদের দাবি যে পাকিস্তানিদের সাহায্য ছাড়া বা পাকিস্তানিদের সহায়তা ছাড়া নাকি তুর্কি কখনো এটা কমপ্লিটই করতেই পারতো না। তারা এমনটা পর্যন্ত দাবি করেছে যে ভাগ্যিস তুর্কির পাশে পাকিস্তানের মতো দেশ ছিল, তাই তারা আজকের দিনে এত তাড়াতাড়ি কান ফাইটারকে কমপ্লিট করতে পেরেছে। তবে আমি জানি না পাকিস্তান এটা জানে কি জানে না যে একটা সময় ছিল যখন তুর্কি আমেরিকার অত্যাধুনিক 5th জেনারেশন ফাইটার প্লেন F-35 এর সাথে যুক্ত ছিল। তবে ওটা আলাদা ব্যাপার, তাকে বের করে দেয়। আর সেই এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে তুর্কি বলেছিল সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা নিজেদের একটি 5th জেনারেশনের ফাইটার প্লেন তৈরি করব। হ্যাঁ, অবশ্যই এটা করেছে। তবে দেখার বাকি এটাই, এই ফাইটার প্লেনকে নিয়ে বর্তমান সময়ে পাকিস্তান থেকে শুরু করে পূর্ব পাকিস্তানের অনেক আনন্দিত। যদিও হ্যাঁ, এটা ভারতের জন্য একদম একটা ভালো খবর নাই। যতটা আনন্দ আজ পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে হচ্ছে বা তুর্কির ঘরের ভেতরে হচ্ছে, এটা কিন্তু কষ্ট ভারতের জন্য। কেননা দেখুন, অ্যামকা তুর্কির প্রজেক্টের আগে শুরু হয়, কিন্তু এখনো পর্যন্ত অ্যামকা বাস্তবায়িত হয়নি। এখানে আজকের দিনে তুর্কির কাছে না ফান্ড আছে, না রিসার্চ আছে, না এত বড় প্রজেক্টকে চালানোর মতন বড় কোনো সহায়তা আছে। তবুও সেখানে তুর্কি এটা কমপ্লিট করে ফেলেছে, অথচ আজকের দিনে ভারত সেটা কমপ্লিট করতে পারেনি। যেটাই হোক বন্ধুরা, পুরো ব্যাপারটির ওপর পাকিস্তান মিডিয়াতে কি চলছে সেটা অবশ্যই আপনারা শুনে নিন। তার সাথে সাথে এটাও জেনে নিন যে বর্তমান দিনে তুর্কি তাদের উৎপাদিত ফাইটার প্লেনকে অবশ্যই আজারবাইজান আর পাকিস্তানের কাছে বিক্রি করবে। আর তার মধ্যে যদি ভারত যদি নিজেদের 5th জেনারেশনের ফাইটার প্লেনকে তৈরি করতে বা নিজেদের ভান্ডারে যুক্ত করতে না পারে, তবে পাকিস্তানের কাছে বড় একটা অ্যাডভান্টেজ চলে আসবে। এটা ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য একদমই ভালো খবর নয়। পুরো বিষয়টির উপর আপনাদের কি মতামত বন্ধুরা? পুরো বিষয়টির উপর আপনাদের কি মতামত? ভারতের কি তাড়াতাড়ি আমেরিকা বা রাশিয়ার থেকে 5th জেনারেশনের ফাইটার প্লেনকে নিয়ে নেওয়া উচিত, না নিজেদের দমে তাড়াতাড়ি অ্যামকাকে তৈরি করা উচিত? অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা দেখে নিন, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। तुर्की के पहले 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, सबसे ज्यादा शोर तुर्की से ज्यादा पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में कान को लेकर जिस तरह की बातें की गई, उसे देखकर ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने इस विमान में सबसे अहम योगदान दिया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने कान में किस तरह का योगदान दिया है। तुर्की ने पहली परवाज से अहम संगे मील हासिल कर लिया। TFX की तैयारी में पाकिस्तान तुर्किया का पार्टनर बन चुका है। अज़्मे आलीशान TFX तैयारे ने अंकारा के शुमाल में एक एयरबेस से उड़ान भरी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने TFX की पहली परवाज पर इजहार मुसर्रत किया। TFX ने गुज़िश्ता बरस कामयाबी से पहला टैक्सी टेस्ट मुकम्मल किया था। तुर्किया 2028 तक पहले ब्लॉक की प्रोडक्शन शुरू करने का इरादा रखता है। पाक फजाइया भी 2030 से पहले TFX को अपने बेड़े में शामिल करेगी। J-31 की शमूलियत के बाद TFX पाक फजाइया का दूसरा 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। पाकिस्तानी इंजीनियर भी तुर्क साथियों के साथ TFX की तैयारी में शामिल। बात आती है अजरबैजान या फिर पाकिस्तान की, तो इन दोनों का योगदान न मात्र बराबर है, यानी न पैसे से योगदान है, न ही टेक्नोलॉजी से योगदान है, सिर्फ नाम का योगदान है।
खास तौर पर तुर्की के सामने अजरबैजान और पाकिस्तान कहीं भी टिकते नहीं हैं। इसके अलावा अगर पैसे की बात करें तो तुर्की से ज्यादा पैसा पाकिस्तान के पास भी नहीं है, तुर्की से ज्यादा पैसा अजरबैजान के पास भी नहीं है। हमारा भी बन जाता है जब वो सरेआम हमने तो उनके घर ही जलाए ना। चलो अगर आपकी बात में मान लूं तो वो तो हमारे सरेआम बंदे मार रहे हैं, इतने मार रहे हैं। अच्छा, वो इंडिया में कुछ भी करेंगे पाकिस्तानियों से बदला लेंगे? नहीं, ये जो फिलिस्तीन ये सारे एक ही हैं। मुसलमानों के खिलाफ तो लोग वैसे ही हैं सारे। मेरी बात सुने, इसराइल में कुछ होगा, भारत में कुछ होगा, उसका बदला पाकिस्तानियों से लेंगे। मुसलमानों की तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह मुसलमानों का साथ कौन देता है? आज ये सारे जो हैं ईसाई यहूदी ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अपना गठजोड़ बना के मुसलमानों के खिलाफ बैठे तो वो कैसे? भाई सऊदी आगे निकल गया है, ये तो बात आप भी। ऐसी बात है कोई बात नहीं, अगर जला भी दिए तो। लेकिन अब मुझे इसके जो आप मार्च की पहली सैटेलाइट की बात करें उसमें 50 वुमेन टीम्स थी जिसमें मेंबर टीम थी, और पाकिस्तान में अभी तक नासा में जो पहली 2 सैटेलाइट्स हैं बदर 1 बदर 2 उनके टीम मेंबर्स का भी लोगों को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता। ये हमारा बेसिक जो डिवीजन है वो ये है कि पाकिस्तान का बच्चा इंडिया को हराने का सोचता है और इंडिया का बच्चा जो है ना नई मंजिला पे यानी कि पहुंचने का सोचता है। हमारा क्या हिस्सा होगा? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट, आप इसको स्ट्रेटेजिक नौयत का प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम लिया है। इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत कम ममालिक हैं जो कि अपनी फ़िज़ाई अफवाज के लिए ख़ुद से फाइटर जेट्स बनाते हैं, ये मिलिट्री नौयत के जेट्स बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजलो करम से उन ममालिक में शामिल है जो कि JF-17 थंडर की सूरत में एक बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर चुका है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसका जो ब्लॉक 13 सामने आया है वो यकीनी तौर पर 4.5 जनरेशन की जो सलाहियतें हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका हामिल है। और उसके साथ ही 5th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान की जानिब से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अगर हम उसको क्रेडिट दें तो यकीनी तौर पर एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि एक मुस्तकबिल की पेशबंदी करते हुए, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करते हुए हमने अभी से ही इस मैदान में कदम जो है वो उठा लिया है। टाइमलाइन की बात करें तो 2030 जो है वो इस हवाले से एक डेट जो है वो, एक टाइमलाइन जो है वो फिक्स की गई है कि 2030 तक पाकिस्तान और तुर्की जो अपना मुश्तरका जॉइंट वेंचर है TFX की सूरत के अंदर, 5th जनरेशन फाइटर जेट की सूरत के अंदर वो तैयार करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूंगी सलमान जरा एलेबोरेट कीजिएगा कि एक तो ये 5th जनरेशन जो हम इसमें टर्म यूज होती देख रहे हैं क्योंकि ये बड़ा मुझे एडवांस लग रहा है, और सेकेंडली जो स्टेल्थ फाइटर हैं ये किस नौयत के होते हैं और स्टेल्थ का जो टर्म यूज होता है ये किस टेक्निकलिटी की बुनियाद पर या फिर इसमें जो भी फंक्शन होगा जिसकी बुनियाद पर यूज किया गया? जी बिल्कुल, जनरेशन की अगर हम बात करें ख़ासतौर पर फाइटर जेट्स के अंदर तो 5th जनरेशन, 1st जनरेशन या 4th जनरेशन जो भी जनरेशन का जब हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं तो इसका मकसद होता है ताकि एलेबोरेट किया जा सके कि किस नौयत के, किस टाइप के फाइटर जेट्स हैं। जो बहुत फर्स्ट फाइटर जेट्स जो हैं जब इंट्रोड्यूस हुए तो वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद थे, जो कि सिंपली उनके अंदर एक जेट इंजन था। जैसे जैसे कैपेबिलिटीज़ जो हैं तैयारों की बढ़ती गई, उनके अंदर विंग्स जो हैं वो चेंज हुए, उनके अंदर रडार्स जो है वो आए, उनके अंदर वेपन सिस्टम जो है वो चेंज हुआ। तो ये जो जनरेशन जो है वो बुनियादी तौर पर किसी भी फाइटर जेट की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको जाहिर करती हैं कि वो कितना ज़्यादा एडवांस्ड है।